Good morning friends. Today we discuss about the Geiger-Müller counter. It is also called GM counter. Geiger and Müller are the two scientists on this name of this scientist. This Geiger-Müller counter has been made. First of all, this is the diagram of Geiger-Müller counter. In this C is the cylindrical chamber. It is a metallic cylindrical chamber, and in this chamber it is filled with the gas at some particular pressure. Pressure is 10 centimeter of Hg mercury. This is the unit of pressure. There are so many units are there. Torr, Pascal, these are the units of pressure, but here we have used this atmospheric pressure. You know that 760 mm of Hg, that is the unit of pressure. mm use कर सकते हो. In case if you want to centimeter you want to use, then 76 centimeter of Hg, that is atmospheric pressure. But here we have filled the gas at particular pressure 10 centimeter of mercury. Now a fine tungsten wire at this is a cylindrical and this is the axis. On the axis we have placed a fine, means thickness is very small, tungsten wire, that is called W, and it is stretched along the axis of the tube. This is the axis of the tube, and we have placed this tungsten wire, and this whole chamber is closed, or it is insulated from the two ends by the ebonite plug EE. It is a ebonite plug, it is an insulating material, and this wire is connected to the positive terminal of the battery, and this cylinder is connected to the negative terminal of the battery through a resistor. R is equal to 100 mega ohm, very high resistance. And this battery is also high tension battery. High tension battery means it produces a very large amount of voltage, up to 1000 to 3000 volt. Again I repeat, W means it is a tungsten wire, and tungsten wire is connected to the positive terminal of the battery, and this cylinder is connected to the negative terminal of the battery, and we have applied this DC voltage. More voltage, high tension battery is providing the high voltage. So this is the battery. Now what happens when the ionizing particle is entering into the chamber? It is in the counter. ये जो इसके अंदर कोई पैसेज होगा, यहाँ पे पैसेज कोई दिखाया नहीं, पर जब ये चैम्बर के अंदर कोई आयोनाइजिंग पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर होता है, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमें ऐसे डिटेक्टर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है डिटेक्ट करने के लिए. और जो डिटेक्ट होता है वो किसके फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में हमें उसका जो है ऑब्जर्वेशन मिलता है. कि करंट मिलेगा तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एंटर हुए हैं. इसलिए हमें डायरेक्टली मेजरमेंट जो है वो मेज़र करने के लिए हमें ऐसे काउंटर जो है, डायरेक्ट तो हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है, गामा, वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारी जो आई डिटेक्ट करती है उसकी रेंज में नहीं है, वेवलेंथ जो है वो, इसलिए हम ऐसे पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकते नेकेड आई. तो हमें ऐसे काउंटर की ज़रूरत पड़ती है, और काउंटर के थ्रू हमें करंट मिलता है, और ऐसे करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो when an ionizing particle, say alpha particle, enter into the counter, ionization takes place and few ions are produced.
ये आयोनाइजेशन जो प्रोसेस है वो तो आपको पता होना ही चाहिए कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो यहाँ पे जो गैस है उसके पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये, क्योंकि ये टंगस्टन वायर को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डिपोजिटेड ऑन दिस वायर एंड ऑल द पॉजिटिव आयंस आर ऑन द सरफेस ऑफ दिस सिलिंडर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसे आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस। पर यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ आप समझो कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे जब पार्टिकल एंटर होता है और यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, गैस के एटम्स हो गए, उसको आयोनाइज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव आयन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास भी सफिशिएंट एनर्जी होगी, वो भी चार्ज पार्टिकल है, तो वो दूसरे गैस के एटम को आयोनाइज करेंगे। यानी बाहर जो पार्टिकल आता है वो तो आयोनाइजेशन करता ही है और उसमें से भी हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अंदर अंदर जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दूसरे एटम को आयोनाइज करेंगे, और ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, दो चार करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन चेन रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एवलेंच। एवलेंच यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो गए और ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ये टंगस्टन वायर के, क्योंकि टंगस्टन वायर को हमने पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो बहुत ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, बहुत आयंस प्रोड्यूस हो गए, और ये जो है हाई पोटेंशियल जो है वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर के थ्रू यहाँ पे हमें जो है सर्किट में, और ये यहाँ पे काउंटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे लिखा नहीं काउंटर, और काउंटर के साथ तो वहाँ पे आपको पहले सिग्नल एम्पलीफाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसका सिग्नल जो मिलेगा वो एम्पलीफाई होगा, यानी एम्पलीट्यूड लार्ज होकर मिलेगा, और यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और काउंटिंग में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ऐसे टाइप का जो है वो, तो यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल आता है तो बहुत सारे जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ जो है उसको समझना है कि कैसे हम नेक्स्ट पार्टिकल को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल आता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो एक के सामने बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा काउंटिंग करने में जो है वो प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे हम रफली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं सडन। तो देखो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि काउंट रेट यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने काउंट होते हैं पर वोल्टेज अप्लाई। तो शुरू में आप इतने वोल्टेज तक तो कोई भी पार्टिकल डिटेक्ट नहीं होगा, मिनिमम वोल्टेज जो है जब तक नहीं मिलेंगे तो कोई भी पार्टिकल जो है वो ये यानी ये ट्यूब जो है जीएम काउंटर वो वर्क नहीं करेगा। ये यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू नहीं लिखी है, पर ये रीजन तक जो है दैट इज कॉल्ड मिनिमम वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस। ये मिनिमम वोल्टेज जो है ये काउंटर को चाहिए ही चाहिए, तो ही ये काउंटर स्टार्ट होगा। और ये जो वोल्टेज है वो आपका वोल्टेज कितना चाहिए, इतना मिनिमम वोल्टेज। और उसके बाद वो जैसे वोल्टेज उसके बाद बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके सडनली एज वी अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीजेस, द काउंटिंग स्टार्ट्स एंड काउंटिंग बिगिंस एंड इट इज राइज rapidly up to this portion and it is almost flat portion and this flat portion is known as plateau। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं प्लेटू क्या होता है, तो आपको लिखना है कि प्लेटू इज अ रीजन इन विच वी गेट अ कांस्टेंट काउंट रेट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वोल्टेज। यानी वोल्टेज आपका बढ़ रहा है पर काउंटिंग जो है वो स्टेबल हो गया है। वोल्टेज तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है पर काउंटिंग जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये तो यहाँ से ही आपको ये रीजन में जीएम ट्यूब को ऑपरेट करवाना है। जीएम ट्यूब को ऑपरेट कराने के लिए ये वर्किंग वोल्टेज उसको बोलते हैं। दिस इज द रीजन इज कॉल्ड प्लेटो रीजन। द काउंटर
expression where counting rate is more or less, it is independent of small changes in potential difference. यानी ये रीजन में आप वोल्टेज को बढ़ाओगे या कम, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो भी कुछ नहीं होगा। ये रीजन की बात करें, पर्टिकुलर ये रीजन की। पर उसके बाद प्लेटो रीजन के बाद जो है अप्लाइड वोल्टेज इज सो हाई द कंटिन्यूस डिस्चार्ज टेक प्लेस, यानी जो काउंटिंग है वो इतना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारा डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आपको रैपिड जो है वो आयनाइजेशन मिलेगा और काउंट रेट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ये जो है उसको कंटिन्यूस डिस्चार्ज जो है वो हम बोलते हैं। ये रीजन को हम कंटिन्यूस डिस्चार्ज। तो ये काउंटर की जो एफिशिएंसी है वो कैसे डिफाइन करेंगे, काउंटर की जो एफिशिएंसी है वो हम डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ ऑब्जर्व काउंट पर सेकेंड टू द नंबर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल एंटरिंग इन द काउंटर, यानी कितने पार्टिकल एंटर हो रहे हैं और कितने आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों का जो रेशियो होगा उससे एफिशिएंसी मिलेगी आपको। तो एफिशिएंसी जो है, काउंटिंग एफिशिएंसी इज द एबिलिटी ऑफ इट्स काउंटिंग इफ एटलीस्ट वन आयन पेयर इज प्रोड्यूस इन इट। तो काउंटिंग एफिशिएंसी एक इक्वेशन है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एस एल पी। एस यानी स्पेसिफिक आयोनाइजेशन एट 1 एटमोस्फियर, 1 एटमोस्फियर यानी यूनिट है, 1 एटमोस्फियर यानी 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी यानी प्रेशर, तो प्रेशर वो ट्यूब के अंदर प्रेशर चेंज करेंगे तो भी एफिशिएंसी चेंज होगा। लेंथ ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल इन द, यानी कितनी जो पाथ लेंथ कितना है, पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है ट्यूब के अंदर, वो भी डिपेंड करता है। ये 3 पैरामीटर जो है SLP, उस पर ये एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया है कि हम यहाँ पे 2 अलग अलग गैस, एक एयर रखा है और एक H2 हाइड्रोजन गैस रखा है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है उसकी कंपैरिजन में एयर की एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी और ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है उस दूसरा की प्रेशर भी बहुत डिपेंड करता है, प्रेशर जितना कम रखोगे उतनी भी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रेशर जो है उस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये जो है आपका गाइगर मूलर काउंटर, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। और उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ इनसेंसिटिव फॉर अ पीरियड ऑफ 200 to 400 माइक्रोसेकेंड फॉलोइंग ईच पल्स, यानी ये लिमिट है 200 से लेके माइक्रोसेकेंड ये रेंज में जो है वो इनसेंसिटिव है, यानी उससे ज़्यादा सेकंड होगा तो ही ये जो है वो मेज़र कर सकता है। विच प्रिवेंट्स इट्स यूज एट वेरी हाई काउंटिंग रेट, यानी ये उसकी कैपेबिलिटी जो है GM काउंटर की वो बहुत ज़्यादा काउंट रेट होगा तो ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है। इट कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल कॉजेज, पार्टिकल जो है उसके बारे में, हाँ पार्टिकल आ रहा है पर पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सा पार्टिकल आ रहा है डिस्टिंग्विश करने में, अल्फा आ रहा है बीटा आ रहा है, वो डिटेक्ट करने में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये दोनों जो है वो डिसएडवांटेज है गाइगर मूलर काउंटर के। तो उसके बेस पे आप एक इक्वेशन यहाँ पे दिया, ये बेसिक इक्वेशन है, आपने 12th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वोल्टेज है डिवाइडेड बाय R log B बाय A, B और A जो है वो इनर एंड आउटर रेडियस है और ये सभी पैरामीटर आपको यहाँ पे दिया होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा आपको जो यहाँ पे बताया है कि मैक्सिमम और काउंटर हाउ लॉन्ग, काउंटर कितने टाइम तक जो है वो उसका भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके जो है वो दिया है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो सपोज एवरेज 30 आवर्स पर वीक काउंट करता है एट द 3000 काउंट पर मिनट, तो ये जो है
वो कितना काउंट रिकॉर्ड करेगा, तो 3.7 ईयर्स इतनी लेंथ लाइफ